ऑलराइट, एक बार ना सिर्फ इसमें जाते हैं, SAE 3400 का रिपोर्ट राइटिंग कैसा होता है वो देख चेक कर लो। नो नो, दैट इज CA इंटर। ठीक है, चलो। मतलब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। यस, एट योर ओन रिस्क। इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट ऑफ अ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्शन, इसमें मुझे क्यों दिखाना था, बिकॉज देयर वाज जस्ट अ करेक्शन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन। नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन का जो लैंग्वेज रहता है ना, वो आप लिमिटेड एश्योरेंस के केस में देते हो। ऐसे ही जो हमने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लिखा था, दैट वी हैव रिटन ऑन अ मॉडरेट अश्योरेंस, राइट? सो लेट्स रीड द लैंग्वेज, हम कैसे अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, सुरभि आप ये पढ़ोगे एक बार? हाँ, विल यू स्टार्ट? मैं ठीक है। Illustrative format of an unmodified opinion on a projection report on examination of prospective financial information to the whomsoever addressee. We have examined the projection of जो भी रिपोर्ट कंपनी नेम। का नाम है हाँ। या एंटिटी का नाम है फॉर द पीरियड फ्रॉम डेट्स एज गिवन इन, मतलब जो भी नंबर ऑफ ईयर्स रहता कि सो एंड सो ईयर से सो एंड सो ईयर तक, एज गिवन इन to the prospective financial Just information a from second. page. Second, provide suitable identification such as reference of page number or by identifying the individual schedule. ठीक है, so this is the reference of the page number जहां पर PFI होगा। ठीक है। To the prospective financial information from page numbers in accordance with the Standard on Assurance Engagement 3400, the examination of prospective financial information issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the preparation and presentation of the projection, including the underlying assumptions set out in note page number to the prospective financial नहीं, information. दिस इज नोट नंबर्स। हाँ, मतलब ये पेज वो नंबर नोट नहीं है। नंबर्स रहते हैं ना दी, नोट नंबर्स, नोट 1 2 3. करेक्ट, दैट इज तो नॉट द पेज नंबर बट द नोट नंबर। हम्म। ओके। It is the responsibility of the management and has been approved by the board of directors of the company. Our responsibility is to examine the evidence supporting the assumptions, excluding the hypothetical assumption and other information in the prospective financial information. Our responsibility does not include verification of projections. Therefore, we do not vouch for the accuracy of the same. Right. Now, because they are excluding hypothetical exemption, that does not mean that entity cannot prepare PFI on the basis of hypothetical assumptions, right? So our responsibility is to examine the evidence supporting the assumptions. Here they mean they are only verifying best estimate assumption, जिसके बेसिस पर, जिसका एंटिटी के पास कुछ बेस रहेगा कि हम ये एक्शंस लेने वाले हैं, उसके हिसाब से ये सर्टेन रिजल्ट्स होंगे, एंड दैट बिकम्स अवर बेसिस फॉर PFI। हमने हाइपोथेटिकल assumptions नहीं टेस्ट किए हैं इनके, राइट? Our responsibility does not include verification of projections, right? So basically, they are verifying what? They are verifying the forecast, but not the projections, right? And This projection This projection has been prepared for whatsoever the name of the intended user. The use projection, use किसके लिए? Not the user, use क्यों prepare किया गया है? Like for example, if they have for raising funds from the investors or for raising funds from the bank or for any purposes, जो वो purpose लिखना है आपको। मैडम एक लास्ट पॉइंट में ऐसा था कि our responsibility is to examine the evidence supporting the assumption को नहीं, evidence for the assumption. Our responsibility, 1 minute.
our responsibility to examine evidence supporting such assumptions. assumption Supporting the assumption. assumption को नहीं हम वेरीफाई करेंगे, हम जो एविडेंस है उस हम्म assumption को सपोर्टिंग उसको वेरीफाई करेंगे, ना ही एविडेंस प्रोजेक्शन की सपोर्टिंग द वैलिडेशन भी नहीं assumptions तो करेंगे। बेस्ट एस्टिमेट ना कि एक्सक्लूडिंग द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पशन assumptions. तो our responsibility is to examine the evidence supporting the assumptions, excluding the hypothetical assumption and other information in the PFI. मतलब दी है तो दो एग्जाम्पशंस, दो में एक को एविडेंस होना ही नहीं है, तो बेस्ट एस्टिमेट के लिए सपोर्टिंग एविडेंस जब रहेगा व्हेन देन ओनली वी विल यूज द बेस्ट एस्टिमेट। करेक्ट। ठीक है, आगे। This projection has been prepared for intended use. The projection has been prepared using a set of assumptions that include hypothetical assumption about the future events and management's action that are not necessarily expected to occur. Consequently, users are cautious that this project may not be appropriate for the purposes other than that described above. करेक्ट। We have carried out our examination of the prospective financial information on test basis. दिस इज ऑल्सो वी स्टडीड इन द फॉर्मेट गिवन कि हमने टेस्ट बेसिस पे किया हुआ है। करेक्ट। Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention which cause us believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projection, as assuming that uh, state or refer the hypothetical assumption. मतलब वॉट एवर इज द बेसिस ऑफ योर अजम्पशन दैट यू आर टेकिंग, वो आप वहां पर मेंशन करो। ठीक है, मतलब नॉट नेसेसरली, सी दे आर ऑलवेज रेफरिंग टू स्टेट और रेफर टू द हाइपोथेटिकल अजम्पशन, बट इन द स्टैंडर्ड दे हैव यूज द लैंग्वेज आइदर इट इज बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल अजम्पशन, राइट? सो यू कैन राइट बोथ, नॉट नेसेसरली यू नीड टू रेफर टू द हाइपोथेटिकल अजम्पशन। ठीक है, आगे। Further, in our opinion, the projection is properly prepared on the basis of assumptions set out in note number to the prospective financial information and on a consistent basis with the historical financial statements. Using appropriate accounting principles, even if the events anticipated under the hypothetical assumptions described above occur, actual results are still likely to be different from the projection, since other anticipated events frequently do not occur as expected and the variation may be material. राइट, सो यू आर जस्ट गिविंग द सेम इंफॉर्मेशन जो उन्होंने आपको स्टैंडर्ड पे देने के लिए बोला था, कि यू राइट इन द एंड कि बाबा इवन जो अगर ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पशन के बेसिस पे पीएफआई है और वो एक्चुअली इवेंट्स अगर हो भी गए तो भी द रिजल्ट्स कैन बी डिफरेंट ओनली नो देन व्हाट इज शोन इन द पीएफआई, राइट? उसका एक दो अपेंडिक्स है, एक अपेंडिक्स 1 भी है और एक अपेंडिक्स 2 भी है, वो भी आप पढ़ लो उसके बेसिस पे। ठीक है, चलेगा। प्रतिका एक बार रीड करोगे आप अपेंडिक्स 2? Appendix 2 Illustrative format of an unmodified report on a forecast. Report on examination of prospective financial information to the addressee. We have examined the forecast of project of the entity for the period from to as given in 2 of नोट the नंबर note number of the prospective financial information in accordance with standards on assurance engagement 3400, the examination of prospective financial information issued by the Institute of Chartered Accountants of India. सो The फर्स्ट preparation पैरा इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पैरा जो मैंने ब्रैकेट के अंदर मार्क किया है, राइट? एंड देन यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द पीएफआई स्टार्टिंग हियर। The preparation and presentation of the forecast, including the underlying assumptions set out in note number so and so to the prospective financial information, is the responsibility of the management and has been approved by the board of directors of the company. The sources of information are set out in annexure number so and so to the prospective financial information. Our responsibility is to examine the evidence supporting the forecast. Our responsibility does not include verification of the forecasts. Therefore, we do not vouch for the accuracy of the same.
ठीक है, सो बेसिकली क्या हो गया, वन इज योर इंट्रो पैरा जिसके अंदर यू विल आइडेंटिफाई द पीएफआई, देन यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा जिसके अंदर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ। अभी यहाँ पर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, योर नेम इज नॉट यूज्ड एज द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, यू आर स्टिल द ऑडिटर इन द स्टैंडर्ड इटसेल्फ। हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे कैरेक्टर का नाम चेंज हो जाता है इन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, सो यहाँ पर आप यू आर स्टिल एन ऑडिटर। ठीक है, This forecast has been prepared for intended use. The forecast has been prepared using a set of assumptions as set out in note number so and so to the prospective financial information. We have carried out our examination of the prospective financial information on a test basis. Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention which causes us to believe that assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast. Further, in our opinion, to the forecast, read with the notes thereupon, is properly prepared on the basis of the assumptions as set out in note number so and on a consistent basis with the historical financial statements using appropriate accounting principles. Actual results are likely to be different from the forecast since anticipated events might not occur as expected and the variations might be material. डन। ठीक है, आई विल सेव दिस इन योर, मैं आपके फोल्डर में सेव कर देती हूँ, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू रेफर लेटर यू कैन रेफर इट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस, कीप योर नोटबुक्स आउट, एवरीवन। CA classes, batches, CA final, this live classes, chapter 11, 3400 यहाँ पर। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी से, अरे यार उसका नाम चेंज करना था, वो है। चलो, अभी आते हैं हम किधर, ये जो फॉर्मेट है वो सिलेबस का पार्ट है। नहीं, हाँ, फॉर्मेट इज योर सिलेबस का पार्ट, वो हमने पढ़ा भी था ना थोड़ी देर पहले, फॉर्मेट इंक्लूड करके दिया था उन्होंने, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड। नहीं, जो अभी पढ़ाया है। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आई एम टेलिंग दिस टू यू, दे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर 7 से लेकर के 11 तक, वो कहीं का भी रिपोर्ट लिखने के लिए पूछते हैं, आपको याद रखो। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, discuss how a chartered accountant can be associated with PFI without violating the relevant provision of CA Act 1949. Please mention the clause number. पार्ट 2 सेकंड, पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल Clause 3। clause 3. गलत भी हो सकता है। अरे फटाक से चेक करो, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ में यूट्यूब में जाएगा, क्या बोलेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे। जो मर्जी कही जाए, सबसे पहले तो आपको कहेंगे आपने गलत बताया। मैंने बताया ही नहीं, आई डेंट इवन टेल, आई वॉज वेटिंग कि आप बोलोगे, अज्यूमिंग कि आपकी एग्जाम है। मैं याद कर लेती हूँ, रुको, तुम लोगों के चक्कर में नाम खराब होगा। कुछ तो लोग, ये गाना भी जाएगा फिर। क्या क्या क्लास, कुछ याद नहीं, एग्जाम है, 1 महीने के एग्जाम। Clause 3 of Part 1, second schedule. Second schedule, right? Clause 3, Part 1, second schedule. सॉरी मुझे दिपेन, गलत कौन कह रहा था? सॉरी दिपेन, यू डिजर्व अपॉलॉजी फ्रॉम मी। ठीक है, सो कैन यू डिस्कस हाउ कैन बी एसोसिएटेड विद द पीएफआई विदाउट वायलेटिंग दिस, आंसर कैसे लिखोगे इसका?
कृपया करके मुझे डिक्टेट किया जाए। और सब लोग आंसर लिखेंगे, हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। मतलब ये खत्म होने के बाद ना इंटर की बच्चों की जैसे चुपचाप मेरे को ना फोटो खींच के भेजा करो पीडीएफ के, कोई भरोसा नहीं है मुझे तुम लोगों के ऊपर। कोई नहीं आता है टेस्ट देने के लिए, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड। यू कैन सी द फ्रस्ट्रेशन इन माई। मैम मुझे आपने बस टाइम मिलने की बात है। हाँ सिद्ध, हाँ सिद्ध। कल ना एग्जाम लिखने के बाद ना मेरे को ना माइग्रेन का अटैक आ गया थी। अरे यार बताओ, ऐसे कैसे चलेगा। मैंने सोचा था रात को 11 बजे लिखूंगा मैं। लिखना मैंने था भी ना सिद्ध। हाँ सिद्धार्थ। 10:30 12:30 ही लिखा है मैम, मैंने भी रात में। फिर सब बच्चे ने पता लिखे, इंटर वाले इतने सिंसियरली लिख रहे थे, 3 ही बच्चों ने लिखा है पेपर, पता है। एज पर क्लास 3 पार्ट 1 ऑफ। मैम बट आपने सिलेबस के बाहर के ही दे दिए इतने सारे क्वेश्चन। क्या? पी का कोई पी का पेपर था ना। बट मैम काउंसिल गाइडलाइंस तो अभी हमने पढ़े नहीं थे, और कारो भी सुबह ही पता चला मुझे तो कि कारो भी देना है। नहीं, काउंसिल गाइडलाइंस वाला ठीक है, बाकी नहीं नहीं नहीं, बाकी बाकी ऐसा नहीं है, एक आध ही क्वेश्चन रहेगा काउंसिल गाइडलाइन के, बाकी सब मैंने उसके दिए थे क्लॉजेस पार्ट्स के, ये क्वेश्चन हाँ दिए थे। मैम 3 काउंसिल गाइडलाइन के थे और 3 कारो के थे। अरे ठीक 12। है हाँ, यार, वो कारो तो पढ़ा मैम हुआ है ना यार, हट। मैम वो जो क्वेश्चन आपने कारो में 6 मार्क का दिया था ना, उसमें तो मेरे ख्याल से 1 घंटे का पंचायत भी करे थे अपन ने। वही मैं वो क्वेश्चन देके मुझे आंसर मालूम था, क्योंकि हमने इतना लंबा डिस्कशन किया था उस क्वेश्चन के ऊपर। क्लास 17 क्लास। ठीक है, अभी मेरे ऊपर ब्लेम गेम खत्म हो गया है तुम लोगों का, तो थोड़ा पढ़ाई कर ले क्या। हाँ, एग्जाम मेरी है। अगला मौका भी ढूंढ रहा हूँ। दीपन परेशान मत करान, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है परेशान होने का। पर सही भी अपना पोस्ट ने 1 हफ्ता पहले दो दी। ऐसा बॉम्ब मत फोड़ देना। बजे। एग्जाम में ना 19 चैप्टर्स पूरे आने वाले हैं, नाउ यू सी क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मेरे पापा ने भी।
डन। आगे चलेंगे। रूपाशी पढ़ोगे अगला क्वेश्चन? इसमें हमने ऐसे ऐसे ही 3400 सीए एक्ट के बताया ही हिसाब से नहीं। पूछा था ना, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं पूछा था। मैंने एक पुराना क्वेश्चन देखा है, पहले एग्जाम में काफी आता था, तो उसमें उन्होंने मतलब इसका भी बताया था, ऐसे ही वो थ्री फोर हमने जीरो इससे जीरो का। पहले वो जब ये क्लॉज का क्वेश्चन किया था तो उसके साथ में हमने डिस्कस किया था ना वो सेम क्वेश्चन, जिसमें 3400 और इसका वो क्लास को क्लॉज का सेक्शन था, तो वहां पर हमको इसके रेफरेंस में भी आंसर करना था, स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस में, एंड वी हैड डन दैट। हमने राइटिंग में किया है वो वाला क्वेश्चन आंसर, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे थे उस टाइम पे। देख लीजिए, मुझे भी नहीं याद। बट वो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज दिस इज। नहीं दी, ये क्वेश्चन अलग है। वो तो आई थिंक क्लॉज 7 में प्रोस्पेक्टस का जो भी हो। देखते हैं वो क्वेश्चन। रूपश्री पढ़ो ना ये वाला क्वेश्चन। A&Co wants to issue a prospectus to provide potential investors with information about future expectations of the company. You are hired by T&Co to examine the projected financial statements and give report thereon. What things you will consider before accepting the engagement? What thing you will consider, Rupashri? You will only answer. You learned that answer. There were 5 things and easy things. You, recall जब तक I'll set the context. The period for which it is to be prepared, assumptions to be used. Elements, Hmm? elements of the To be included in information, the information, yes. उसके अलावा each person, period, elements, record, Intended use. intended use. Distribution का क्या point था वो? General or Restricted specific. distribution. Restricted distribution. First, period covered by the PFI. Second, elements to be included in the information. Nature of assumptions. क्या मिस किया मैंने? Further, the auditor should not accept engagement if assumptions are unrealistic, and when auditor believes that PFI
will be inappropriate for intended use. ठीक है ना। अब अभी आपका एक क्वेश्चन था कि मतलब बाकी सारी चीजें भी अगर कवर गलत रहेंगी तो भी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। सी, इफ द पीरियड कवर्ड बाय द एंटिटी इज नॉट करेक्ट, यू कैन आस्क द एंटिटी टू चेंज द पीरियड। इफ द एलिमेंट्स आर मिसिंग, you can ask the entity to use the right elements or include the right elements or show the details like that. If the distribution is not mentioned clearly, that distribution can be changed. But if the whole and sole assumption or the intended use is not correct, that becomes a major issue, that which you may not be able to convince the entity to change, right? And that is why they are saying if this is the problem, then you should not accept or you should withdraw only. करेंगे अगला क्वेश्चन गाइस। चलो, सिद्धार्थ है, ही वॉज देयर ना। एक सेकंड, मुझे सब बच्चे क्यों नहीं दिख मैं रहे? यही हूँ मैम मैं। तृप्ति, चलो क्वेश्चन पढ़ो। KG Limited wants to provide prospective financial information to its investors with information about future expectations of the company. You are engaged by KG Limited to examine the projected financial information and give report thereon. What will you consider in assessing the presentation and disclosure of the prospective financial information and the underlying assumptions? Did we do a question just related to presentation and disclosure? कैसे चेक करते हैं? किया था that the presentation and disclosure should not be misleading. उनको अपने accounting policies clearly disclose करना चाहिए, right? Very direct straightforward question was there. 7 points. हाँ, तो लिख लो अभी। 7 points. 6 points. How many points. points were there? Six. चलो तृप्ति, आप बोलो ना मेरे को, इंक्लूडिंग द कंटेक्स्ट आप डिक्टेट करो सबको, फिर मैं भी लिखती हूँ, है ना। मैं लिखते जाती हूँ, आप डिक्टेट करते जाओ सबके लिए, चलेगा? Okay. है ना। मेरा मेरा बहुत एनर्जी आज एकदम ऐसा ड्रेन हो गया है। गिर जाऊंगी मैं नीचे। As per SAE बाकी बात है 3400 साइड पे। डिक्टेट कहाँ से कर रहे हो? बोर्ड से, मतलब जो मैम नोट कर रही है वहां जो मैं से। नोट कर रही हूँ, शी विल डिक्टेट एंड शी विल ऑल्सो राइट ना। तो देख देख के लिखने अच्छा का आपका अच्छा टाइम अच्छा, वेस्ट मुझे नहीं लगा होगा पता ना नहीं। ऐसा। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं इसके। वो वाला मैम ने कैंसिल कर दिया। As per SAE 3400, the examination of PFI when एंड assessing, लिखने में टाइम लगता है, धीरे बोल तृप्ति। और खुद भी लिख साथ में। yes ma'am,
When assessing the presentation and disclosure of PFI and the underlying assumption, the auditor needs to consider whether point 1, presentation of PFI is informative and not misleading. Point number 2, the accounting policies are clearly disclosed in the notes of PFI. Point number 3, the assumptions are adequately disclosed in the notes with clear identification of best estimates assumption or hypothetical assumption or both, BEA or HA or both. Point number 4, the date as of which the PFI was prepared is disclosed. Point number 5, the basis of establishing points in range is clearly indicated and the range is not selected in biased or misleading manner. Point number 6, there is any change in accounting policy of the entity from that disclosed in historical financial statement, and whether reason for the change
And the effect of change on PFI is adequately disclosed. Done na? Thank you so much, Yes. Aditi. लिखने के क्वेश्चंस खत्म, अब से पढ़ना है। चलो Di, सिद्धार्थ, हाँ बोलो ना। what is the source of your energy, Di? What is the source of my energy? My energy is down now. People ask me the same questions all the time, but you have not seen 10 years younger Madhu. मैं होली के दिन भी ऐसी थी और मेरे को इतना तबीयत खराब था, इतना तबीयत खराब था उसकी एक रात पहले से। सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, इतना एनर्जी कहाँ से आता है? फिर मैंने उनको बोला, जस्ट रिमेम्बर द 6 year old मधु व्हेन यू फर्स्ट मेट हर। ऐसे 4 गांव को पता चल जाता था मेरे घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं या रिलेटिव्स आ रहे हैं, मैं इतनी खुश रहती थी ना, इतनी खुश रहती थी। आई वुड डू सो मेनी थिंग्स, और मैं बहुत चिल्ला रही होती हूँ, मतलब आई विल लाइक लिटरली येल माई हार्ट आउट, ऐसा इतनी मैं खुश रहती हूँ। बट देन कुछ तो हो जाता है यार, मेरे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। चलो तुम लोग मेरे को बार बार याद मत दिलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिद्धार्थ, ये पढ़ना क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। X Limited approached CA Sumit for an assurance report in respective of PFI of a project. On going through the project details, it is noticed that depreciation reflected on proposed fixed assets to be acquired in PFI has been calculated in accordance with provisions of the Income Tax Act. No disclosure is made in this respect to how the matter should be proceeded with. ठीक है, देखो आपको ना, आपके सीए फाइनल के लेवल पे ना, मतलब इफ यू आर don't expect much that they are going to ask a lot of direct questions, like मतलब अगर 20% क्वेश्चंस भी आपके पूरे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए ना, तो यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, और वो 20% क्वेश्चन भी आपको सेकंड मॉड्यूल से मेनली दिखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना they will ask the question जहां पर you can apply your knowledge, something you can explain to ICI that you belong to CA final और यू आर अ सीए फाइनल स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है ऐसा। मतलब एवरी टाइम आई पिक अप योर क्वेश्चन पेपर ना, मुझे सिर्फ देख के पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं खुद भी अगर वो आंसर लिखने की कोशिश करूंगी इमिडिएटली, सो आई माइट ऑल्सो नीड टू रेफर टू द क्वेश्चन बुक टू मेक माई आंसर मोर एक्यूरेट। ये मैंने मई वाला पेपर भी देखा है, नवंबर वाला भी पेपर देखा है। प्रोबेबली एवरी टाइम आई ऑल्सो सॉ द पेपर, आई फेल्ट द सेम थिंग दैट आई नीड टू टेक अ पॉज, look at the concepts and then formulate my own answers. And this is another example of PFI based question, total application of mind, कि अगर entity का basis different है than the accounting principles, so क्या होगा यहाँ पर if the basis is different than the accounting principles? अब बताओ मुझे, आप अभी पढ़ करके आए हो ऊपर। डिस्क्लोज, हाँ, रीजन ऑफ चेंज डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला पढ़ के आया मैम। करेक्ट, इस अभी आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से सेम होना चाहिए। अगर नहीं है उस केस में तो फिर क्या करोगे? वाई देर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका रीजन अलॉन्ग विद द इफेक्ट इन द पीएफआई जो चेंज पॉलिसी की वजह से हो रहा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट रादर देन राइटिंग की कौन सी 6 चीजें चेक करोगे आप। इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से, राइट? सिद्धार्थ, पढ़ोगे क्वेश्चन आंसर इसका? As per SAE 3400, it is the duty of a professional accountant to see that PFI is prepared on a consistent basis with historical financial statements using appropriate accounting principles. In case of a company, historical financial statements are prepared considering the requirements of the Companies Act, and depreciation is calculated accordingly. In the given situation,
Depreciation has been calculated in accordance with Income Tax Act, which is not consistent with historical financial statement. Therefore, it is not proper. The fact that the projection has not been prepared on a consistent basis with the historical financial statement using appropriate accounting principles needs to be stated. Further, when presentation and disclosure are not adequate, a qualified or adverse opinion should be given or withdrawal from the engagement should be made as appropriate. करेक्ट है आंसर. वेरी लिमिटेड करेक्ट वर्ड्स में उन्होंने आंसर कर दिया है उसको. ठीक है. सो आइडेंटिफाइंग कि किस पार्ट से वो क्वेश्चन पूछा है वो भी बहुत जरूरी है. जस्ट बिकॉज हमने 3400 पढ़ा है एंड 3400 इज ऑल अबाउट द अजम्पशन, यू कैन जस्ट राइट अबाउट अजम्पशन इन एवरी आंसर. ठीक है. उन्होंने टोटली यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी को हिट किया था, वो पर्टिकुलर पॉइंट को एंड द डिस्क्लोजर ऑफ इट. ठीक है. प्रतिका ये क्वेश्चन नंबर 5 लोगे आप. SAE 3400 explains that prospective financial information can take the form of a forecast, projection, or a combination of both. In this context, how do you differentiate a forecast from a projection? Also provide example. Additionally, explain nature of assurance provided by practitioner regarding prospective financial information in accordance with SAE 3400. ठीक है. तीन मतलब assumption. दिए उन्होंने एक के साथ में, लाइक प्रोस्पेक्ट फोरकास्ट क्या होता है वो बताओ अलोंग विद द एग्जांपल, प्रोजेक्शन क्या होता है वो बताओ अलोंग विद द एग्जांपल, एंड द नेचर ऑफ एश्योरेंस दैट यू प्रोवाइड. लाइक 3 क्वेश्चन है, ये एमटीपी अप्रैल का क्वेश्चन है. अगर आपके भी एग्जाम में छाप दे तो कुछ बुरा नहीं है ना. लाइक दो मतलब इट्स, यू कैन सेग्रीगेट द मार्क्स अकॉर्डिंगली. छोटू छोटू क्वेश्चन है इसमें, राइट. प्रतिका पढ़ोगे इसका आंसर. Prospective financial information can be in the form of a forecast, projection, or a combination of both. For example, a 1 year forecast plus a 5 year projection. Forecast means prospective financial information prepared on the basis of assumptions as to future events which management expects to take place and the actions management expects to take as of the date of information is prepared. Best estimate assumptions, an assumption that reflects anticipated experience with no provision for risk of adverse deviation. मतलब Example, हमने अगर वो एक्शन डिसाइड कर लिया तो हम वो एक्शन से डेविएट हो जाएंगे, उसका कोई हमारे पास में ये प्रोविजन नहीं है, क्योंकि दिस इज द एक्शन वी हैव प्लान्ड. हो सकता है किसी किसी रीजन की वजह से वो एक्शन नहीं हो प्रैक्टिकली, वो अलग बात होगा, वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है. बट वी हैव नो अदर प्रोविजन ऑफ थिंकिंग कि नहीं ये करेंगे तो ये ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो वैसा होगा, राइट. दैट वी व्हाट इफ सिनेरियो वी आर नॉट प्लेइंग. ठीक है. एग्जांपल. Example, in present market conditions, supply availability, historical buying patterns, and seasonal trends, the CFO of X Limited expects sales to increase by 5% over the next quarter. Therefore, a 5% sales increase in his financial forecast for the period. ठीक है. What does Projection projection means? Projection means prospective financial information prepared on the basis of hypothetical assumptions about future events and management actions which are not necessarily expected to take place, such as when some entities are in startup phase or are considering a major change in the nature of operations, or a mixture of best estimate and hypothetical assumptions imagined or suggested. Example, X Limited may project a course of action to take when one or more hypothetical situations arise, such as creating a new product to meet the demand of expected market growth. As a result of assuming the possibility of different events occurring, financial projections typically serve as an outline for evaluating the uh, desired outcomes X Limited expects to see, including its financial, cash flow, and operational outcomes. Make sense? Prospect- हाँ. Prospective financial information relates to events and actions that have not yet occurred and might not occur. While evidence may be available to support the assumptions on which the prospective financial information is based, such evidence is itself generally future oriented and therefore speculative in nature.
as distinct from the evidence ordinarily available in the examination of historical financial information. Therefore, an opinion as to whether the results shown in the prospective financial information will be achieved cannot be expressed. Right. So rather than they saying that कि वो achieve like PFI might give a reasonable assurance or moderate or limited assurance, they are saying कि हम ये statement ही लिख करके देते हैं PFI के report में that the पहली बात तो nothing has come to our attention कि भाई वो assumption जो है वो reasonable नहीं है, and दूसरा because ये it is depending on the future event, ये PFI में जो result show रहे हैं they might not be achieved. So that is what is MCQ का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है possibly. They can even draft the opinion like these kind of answers for you and then you have to select the best one, like बिल्कुल आ सकता है. But can you once you receive this books now, this part at least you mark this question as important. क्योंकि अगर हम पीएफआई और सॉरी फोरकास्ट एंड सपोज फोरकास्ट का मतलब आपने समझ लिया, आपने प्रोजेक्शन का मतलब समझ लिया, बट एग्जैक्ट वर्डिंग्स में लिखने नहीं आता है, तो आप जेनरिक आंसर लिख करके आ जाओगे उसका, राइट? अगेन फंस जाओगे. आता हुआ आंसर हाफ मार्क्स से लेस आ सकता है आपका. सो प्लीज फोकस ऑन दिस वन वंस यू हैव इट. देन क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6. कितने क्वेश्चन बाकी है अभी? नहीं ना, ज्यादा क्वेश्चन है क्या अपने पास? आपने 8 बोला था. हाँ 8 है ना अभी. ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. मैम एक कंफ्यूजन है कि हम लोग जो पढ़े थे उसमें ये था ना कि बेस्ट एस्टिमेट को फोरकास्ट बोलेंगे और जो हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल एग्जामिन असम्पशन. है उसको प्रोजेक्शन. हाँ, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन में लिया हुआ है बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल असम्पशंस दोनों. इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. प्रोजेक्शन के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि मिक्सचर ऑफ हाँ. बोथ. मतलब जनरली दे रिफर हाइपोथेटिकल अजम्पशन एज प्रोजेक्शन, बट इट कैन बी मिक्सचर ऑफ बोथ. बट वहां पर क्या होता है ना, उसका रीजन क्यों है हाइपोथेटिकल अजम्पशन या प्रोजेक्शन क्यों बोला है उस चीज को? क्योंकि जब बेस्ट एस्टिमेट होता है ना तृप्ति, तो कभी भी नेक्स्ट 10 ईयर का बेस्ट एस्टिमेट नहीं हो सकता है. इट कैन ओनली बी 1 ईयर. अगर सपोज 5 साल का पीएफआई बना, 1 साल ही उसमें बेस्ट एस्टिमेट होगा, उसके आने वाले 4 साल हाइपोथेटिकल अजम्पशन होंगे. तो वहां पर आपको मटेरियल क्या है? वहां पर मटेरियल यही है कि हाइपोथेटिकल अजम्पशन ज्यादा है ओवरऑल पीएफआई में. दी फर्स्ट ईयर का ना बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से करेंगे, उसके बाद के 5 साल कैसा है मतलब जनरली अपन सोचते हैं कि 5% से बढ़ता, 10% से बढ़ता, तो एक नंबर लेके उसके हिसाब से बना करेक्ट, देते मतलब. करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. डन मैम. डन. क्वेश्चन नंबर 6. चलो, हु हैज नॉट रेड अ क्वेश्चन? एनीवन प्लीज टेक. दीपेन ने ये अनम्यूट बोल किया रहा खुद हूँ. को. You are engaged by Messrs. Wi-Fi Limited to examine and report on PFI, which the management of the company has prepared for presentation at an investor meet program organized by state government to attract investment in their state. The company, in its vision document, described various plans and proposals of the company with projected financial goals and means to achieve the same and various benefits accruing to the economic development of the state. What important matters will be considered by you while determining the nature, timing, and extent of examination of procedures to be applied in the review of the same. बोरिंग क्वेश्चन. 7 points. एनटीई ऑफ एग्जामिनिंग प्रोसीजर. हम्म. चलो, बिना आंसर देखे मुझे बताओ, व्हाट विल बी द एनटीई ऑफ एग्जामिनिंग प्रोसीजर? मैनेजमेंट. सबसे लास्ट वाला बता दो. सबसे लास्ट वाला इजी था. सबसे लास्ट वाला आपका था. Engagement teams that what एग्जैक्टली. सबसे लास्ट वाला था कि हमारे टीम का एक्सपर्टीज हम देख लेंगे, मतलब इस स्पेशली इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज में अगर उन्होंने कुछ काम किया तो उसके बेसिस पे. देन Likelihood of material misstatement. likelihood of Material misstatement. material misstatement. Yes. Knowledge of इंफॉर्मेशन the अबाउट द entity इन before in previous engagements.
प्रीवियस एंगेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट था कि आपने प्रीवियस एंगेजमेंट्स में इन द सिमिलर इंडस्ट्री वगैरह, मतलब सॉरी उस एंटिटी के साथ में, या सपोज प्रीवियस किसी भी, आपको उस इंडस्ट्री नॉलेज वगैरह है, नॉलेज यू हैव गेन्ड इन दैट, ओके। सुरभि आप क्या बोल रहे थे? Information about the project, etc. ऐसा कुछ Sources पॉइंट of है? information. Sources. Sources of information. Management's competence to prepare the हाँ, prospective financial. management's compared. देयर वाज गुड पॉइंट था कि मैनेजमेंट कितना कॉम्पिटेंट है टू प्रोवाइड टू प्रिपेयर द पीएफआई। करेक्ट। The sources of information taken to prepare the prospective financial करेक्ट। information. 100%। हो गए सारे। हो गए सारे? ये वाला नहीं हुआ था ना, मैनेजमेंट Management's जजमेंट judgment. वाला। Hmm. किस एक्सटेंट तक Ability of पीएफआई जो the है मैनेजमेंट business. के, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस। करेक्ट, ये दो मिस किया था, अब ये याद रखना। बाकी तो याद आ ही जाएंगे। सी द लाइफ इज इजी। अरे आंसर क्यों दिख रहा है? अरे बट ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया है ना। What steps should be taken to formalize the terms of engagement? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? What factors should an auditor consider before accepting an engagement to examine the PFI? And under what Five points. conditions should the auditor decline or withdraw? उसके opposite. Additionally, what steps should be taken to formalize the terms of engagement? ये क्या concept है? जो लास्ट वाला पैरा लिखा था 5 पॉइंट्स के बाद। नहीं, वो तो ये था ना कि आप विड्रॉ कब कर लेना। It is essential to agree on the terms with client by sending an engagement letter like other engagements. ये क्वेश्चन तो इतना सोच, ये स्पेशली लाइन लिखा है अगर और मैं नहीं इसको लिखने से अगर मेरे एक नंबर जाते। उनके आंसू रुला रहे हैं। 1 मिनट पढ़ने दो। सोच किसी ने सोचा And होगा कि ना दो ये सौ डाल दस देते, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देते, इससे एक नंबर कटेंगे बच्चों के, उनसे उनका जीनियसनेस चेक होगा। ये आंसर तो कोई सोच ही नहीं पाएगा अगर एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो। हाँ, मैं तो बिल्कुल टू भी वन नहीं। थी, पता है। सारा जो कॉन्फिडेंस होगा इस आंसर में सब चला जाएगा कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, ऐसा क्या है ये। मतलब ऐसे टेस्टिंग कॉमन सेंस टू। एक बार कॉमन क्वेश्चन सेंस के दिखाना, साथ क्वेश्चन दिखाना हाँ, लिखा ये क्या देखो है। ये देखो ये देखो। फिर स्टेप्स पूछे और यू आईसीए ने गेटिंग आंसर क्या दिया है। यू आर गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ। What steps should be अगर taken to अरे उसको formalize the पढ़ने terms दो, of the उसको engagement? पढ़ने दो। अगर स्टेप्स हे लिखना है तो माता वापस जी। सीसी को घुमा घुमा के लिखना है कि पहले हम ड्राफ्ट मुझे एंगेजमेंट नहीं लेटर पता, यहाँ पे भेजेंगे, लिखा है। फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर अपन वापस साइन करेंगे, यही स्टेप्स होगा। और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो ऐसा वन लाइन में लिखना चाहिए था। तो उन्हें लगेगा पता नहीं क्या कहानी लिख के दी है बच्चे ने। काट देंगे। भगवान ना करे कि ये वन लाइनर आपके ऐसे ही 3400 में हो, जो मैंने लिखा नहीं हो नोट्स बनाने के टाइम पे। ये यहाँ देख लिया ना, याद रह जाएगा। और क्या। ये रात याद रहेगी। ये रहा आरटीपी नवंबर हाँ, 24 रात के क्वेश्चन है ये। सेशन ज्यादा याद रहते हैं वैसे। दी उस दिन जो अपन ने कारों में वो कैच लॉस का वो पॉइंट से ना मुझे वो आंसर याद आया था। नहीं तो मैं तो सोची कि आज कारो छोड़ के देंगे, जितने भी आए छोड़ देंगे क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गया था कि हम बैठ के कारो का गाइडेंस नोट उठा के बैठ के पढ़ रहे थे कि कैसे हाँ, आया आई थिंक वो। उस दिन कृतिका ही क्लैरिफाई कर रहे थे यू हम। ओनली डिड दैट कृतिका। हमने तो क्योंकि देखा वो भी नहीं था, मैंने तो वो कष्ट भी क्योंकि नहीं वो लिया। सेम क्वेश्चन मेरे टेस्ट में भी आया था, तो इसीलिए वो मुझे याद था आंसर। गुड गुड, चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूपेश से पढ़ोगे, पीक्यू फार्मा लिमिटेड। PQ Pharma Limited, a company dealing in research and development and manufacture of pharmaceuticals, is coming up with an initial public offer. PQ
Pharma Limited has prepared the prospective financial ये statements for तुम्हारे the next एग्जाम का क्वेश्चन है, ये क्या बकवास है? दिस इज योर एग्जाम क्वेश्चन। ये हमने अभी डिस्कस किया था ना, सॉरी, ये मेरे को डेजावू हो रहा है क्या? डिड वी डिस्कस दिस इन द अभी सेशन? नो मैम। नो वी डेंट। चेक योर कॉपीज, कितने नहीं। नंबर मिले हैं इसमें? सॉरी, सॉरी सॉरी रूपश्री, हाँ गो हेड। PQ Pharma Limited has prepared the prospective financial statement for the next 3 years and included the same in the prospectus as part of its IPO. The prospective financial information includes projected balance sheet, statement of profit and loss, and cash flow statements, which are prepared on the basis of several key assumptions like favorable government regulations, planned research and development of more effective medicines at a reasonable price. The company approaches CAZ to provide assurance on the prospective financial information and to access the presentation and disclosure of the prospective financial information included in the IPO. List out the aspects that must be considered for making such assessment. असेसमेंट ऑफ पीएनडी है ना ये क्वेश्चन? अब तो आएगा ही ना आपको आंसर लिखने के लिए, लेकिन नवंबर 24 में कितने नंबर मिले? आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो नाउ। कृतिका, सोचो ये कितना अब तुमको कैसा लग रहा होगा ना, कितना कितना बुरा लग रहा होगा वो दिन याद हाँ ना, करते हुए। दी ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी लिख ली तो मैं आज क्लास में तो नहीं रहती थी दी। रात गई बात गई। क्या देते? रात गई बात गई। बात गई ना सच में। बट अच्छा हुआ भाई, वो अपनी गलतियां, गलतियां क्या होता है मतलब, देखो ना, हम अगर सिर्फ सिर्फ अगर थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट के साथ में, मतलब तुम ऐसा भी किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में नहीं बैठे हो जो 15 साल से ऑडिट पढ़ा रहा है। इट्स लाइक अ वेरी फ्रेंडली डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? हम सिर्फ एक दूसरे को याद दिला दे रहे हैं कि भाई देखो, ऐसे सिचुएशन पे ऐसा ऐसा आंसर्स होना चाहिए। अब there are very high chances that you are going to remember this till your exam. Obviously क्वेश्चन ये नहीं आएगा, but if the now you know कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो your brain will always be alert कि other questions क्या आ सकते हैं उसमें, right? From this, तो it will be easy only, no? दी अगर ये आप यूट्यूब में डाले, अगर ऐसे जो भी सेटर है उसको मिल गया, उसको लगता है। कुछ नहीं कर सकते वो लोग यार, उनका उनका ब्रेन का कैपेसिटी उतना ही है। दो चार ऐसे मैंने नए, दो चार क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाते हैं, बाकी सब यहीं से छाप के डालते हैं। जस्ट हमारा गलती क्या होता है कि हम बोझ में आ जाते हैं कि दिस इज जस्ट टू मच फॉर अस टू स्टडी, एंड दैट इज व्हाई वी कांट डेडिकेट द इम्पोर्टेंट टाइम टू ऑल द टॉपिक्स। तो उसके चक्कर में हमसे अच्छे टॉपिक्स भी छूट जाते हैं। वो सिर्फ वो प्रॉब्लम है उसका। वो लोग कुछ नहीं कर सकते अपना। चलो मेरे को एक बात बताओ, कितना जोश है, एनर्जी है? जीरो? अरे We can see. मैंने ये गॉड If प्लीज। क्वेश्चन you तो have energy, then we too have. एक सेकेंड ना, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वी आर डन विद दिस चैप्टर्स क्वेश्चन।